Hello everyone, welcome to my class on types of bioreactors. Okay, all of you know that in the GAT-B exam, the syllabus has been revised and a new topic has been added, which is bioprocess engineering. Okay, so in that topic, one of the major subsection is types of bioreactor design and types of various bioreactors. Okay, so in this class, I am going to teach you about that. Okay, so starting with the bioreactor configuration. Okay, so what is a bioreactor actually? It is a cylindrical tank. Okay, it has a cylindrical shape. Okay, and the volume may vary depending upon how large, how big our requirement is. Okay, so it is basically a cylindrical tank which is either stirred or unstirred. Okay, stirring means mechanical stirring over here. So there is a mechanical stirrer. Okay, and when it moves, the media inside the bioreactor will get mixed. Okay, so the most common reactor in the bioprocessing is actually the stirred and unstirred one. Okay, so there are huge variety of configurations available in different bioprocess industries. Okay, and novel bioreactors are constantly being developed for various upcoming requirements. As and when there is new discovery, as and when there is a new product, new process is developed, a new bioreactor design is usually uh, made. Okay. The major challenge in bioreactor design is the adequate mixing of the material. ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए मटेरियल का और एयरेशन भी होना चाहिए बिकॉज देयर आर लाइव सेल्स विद इन द बायोरिएक्टर. माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उसमें जो कि ग्रो कर रहे हैं. दे आर increasing in their number, they are doing all the metabolic reactions. Okay, जिनमें से एक रिएक्शन हमारा यूजफुल रिएक्शन भी हो सकता है जिसका प्रोडक्ट हमें एट द एंड चाहिए, राइट, एज द प्रोडक्ट yield. Okay, so this is the major challenge in any bioreactor design in the bioprocess industry. Okay, so what are bioprocess industries? They are basically all the industries including biopharmaceuticals, okay, food and beverage industry, okay, and all those vaccine development industries and all those health supplement industry. So all of these come under bioprocess industries. Okay, now starting with the stirred tank. The first type of bioreactor which we are going to study is stirred टैंक. स्टर टैंक में क्या होता है बेसिकली? स्टर टैंक में मैकेनिकल एजिटेशन होता है, मैकेनिकली मिक्सिंग करते हैं. इट रिक्वायर्स हाई इनपुट ऑफ एनर्जी in the form of electricity which is then converted into mechanical energy. Now how they are mixed, what are the stirrers? They are actually uh, a long shaft and on which there are small blades are placed like this, similar to the structure of a fan. Because of the rotation of these blades, there is mixing of the content within the bioreactor, within the tank. Okay, there could be multiple blades, multiple shafts within the same
mechanical stirrer, like that. So whenever it is mixing all throughout the volume of the medium. Wide variety of impeller sizes and shapes are available. So what are impeller? These are the impellers. The blades which I was talking about are the impellers. तो अलग अलग शेप्स के अलग अलग साइज के impellers अवेलेबल होते हैं. ओके, दे प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लो पैटर्न्स. ठीक है, फ्लो पैटर्न डेवलप होता है within the media within the tank. Okay, and based on that flow pattern there is mixing, that we can calculate how much mixing is happening within the stir tank. So all of these calculations are not in your course. What is in your course? The type, which type, the design, and how it works. There are also baffles. Okay, what are the baffles? Baffles are some protrusions coming out of the wall of the cylinder. The cylindrical structure is there. There are protrusions coming out of the wall of the cylinder. They are called as baffle. These baffles are actually preventing the vortexing. What is vortexing? Vortexing is formation of a vortex within the medium. Okay, so like conical flow pattern is formed on the top of the surface of the media. There is a cone formation which is called as vortex, and because of this vortexing there is a lot of shear stress is produced on the cells, microbial cells, which we do not want. So to disrupt that vortexing, there are baffles attached with the cylindrical stir tank. Typically 70 to 80% of the volume of the stirred reactor is filled with the liquid. ओके, तो लिक्विड से फिल रहता है कितना परसेंटेज? 70 to 80% फिलिंग होता है. एकदम टॉप तक फिलिंग नहीं करते हैं, अप टू 80% तक फिलिंग करते हैं. तो एडिक्वेट स्पेस होता है ऊपर, ताकि हम जो ड्रॉपलेट्स जो ऊपर जमा हो जा रही हैं या फिर जो फोमिंग हो रही है, ऑल ऑफ दिस इज टेकन बैक इनटू द मीडियम. ठीक है, और देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पेस फॉर द एग्जॉस्ट ऑफ द गैस. ठीक है, तो गैस के एग्जॉस्ट के लिए भी स्पेस जरूरी होता है. सो दैट इज वाई अप टू 20% स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी. ओके, सो इफ देयर इज अ फोमिंग प्रॉब्लम, कुछ मीडिया में फोमिंग प्रॉब्लम होता है, फोम बन जाते हैं बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्टरिंग. ठीक है, तो उस फोम को ब्रेक करने के लिए क्या लगाते हैं? जनरली फोम ब्रेकर. ठीक है, फोम ब्रेकर्स आर ऑन द टॉप सिमिलर टू द baffles on the surface, touching the surface of the liquid media. They can be adjustable. ओके, ताकि जो भी फोम बन रहे हैं वो सब ब्रेक हो सके. ओके, एंड देयर आर सर्टेन केमिकल एंटीफोम्स आर ऑल्सो यूज्ड, जो एंटीफोम की तरह एक्ट करते हैं. दैट आर ऑल्सो यूज्ड as the foam breaker. Okay. Now in the stir tank, basically where they are used for free and immobilized enzyme reactions. Okay, free और enzyme immobilized reactions जो होते हैं, दोनों में ये यूज होता है. ठीक है, कल्चर ऑफ सस्पेंडेड एंड इमोबिलाइज सेल्स, बोथ. इमोबिलाइज्ड के लिए भी यूज होता है और सस्पेंडेड के लिए भी यूज होता है. पार्टिकुलेट कैटलिस्ट जो होता है उसके साथ हमें स्पेशल केयर रखनी होती है. वाई? बिकॉज इफ इट इज मूविंग एट हाई स्पीड, the impellers are moving at high speed, then they might destroy the catalyst, the particulate catalyst. The the consistency of the catalyst may be broken down. High level of shear can also damage the sensitive cells. अगर बहुत ज़्यादा sensitive cells हैं तो भी हमें avoid करना चाहिए at
स्टरिंग एट वेरी हाई रेट, ठीक है, स्लो स्टरिंग सही रहता है, या फिर उसके लिए दूसरे टैंक्स होते हैं, एयरेटेड टैंक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, तो वो टैंक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैकेनिकल स्टरिंग नहीं होती है, एयर स्पार्जिंग के थ्रू, एयर बबलिंग के थ्रू स्टरिंग होती है। तो ये स्ट्रक्चर है एक मैकेनिकल एक स्टर टैंक की। यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें कूलिंग पाइप भी है, ठीक है, तो टू कंट्रोल द टेम्परेचर विद इन द body of the bioreactor. So there are a network of cooling pipes is present within the bioreactor. There are impellers, right? These are the impellers. These are the cooling pipes. Now this is what? This is the foam breaker which I have just talked about. तो ये सरफेस पे है, यहाँ पर अगर फोम टच करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। देर इज एम्प्टी स्पेस ऑल्सो। यहाँ पर देखो बैफल है, बैफल किस लिए यूज होते हैं? बैफल टू प्रिवेंट द वोर्टेक्सिंग, टू प्रिवेंट द वोर्टेक्सिंग। And this is the stirrer, actually this entire thing is a stirrer. Okay, there is sparger also. Sparger means for the sparging of gas, for the sparging of air. Okay, because the microbial cells require oxygen for their metabolism. For that, we need to circulate air within the media, right? Next type of column is bubble column. In this column, what will happen? There is gas sparging occurring. Okay, so there is a sparger similar to the stir tank, but here it is more exhaustive. Okay, it is more in the well developed form. So the gas is sparged through the media, and the mixing of the media occurs because of this sparging. Okay, so in this column there is no mechanical agitation. Okay, so this is uh, for those cells which are sensitive for the mechanical stirring, the shear stress. All of those cells can be used in this bubble column. They require very less energy as compared to the stir tank. Okay, air sparging will not require that much energy. There is no mechanical stirring that requires a huge amount of energy actually. That is not required in bubble column. So these are really economic columns, and they are also efficient in terms of sensitive shear stress sensitive cells. They are applied industrially for the production of Baker's yeast. जब Baker's yeast का प्रोडक्शन होता है तो उसमें बबल कॉलम यूज़ करते हैं for the alcoholic beverages, beer, vinegar, and for the treatment of wastewater also these columns are used. Okay, so these bubble columns are actually structurally very simple. बहुत ही basic structure होता है, बहुत ही simple structure होता है, ठीक है. And the treatment of wastewater, it is used because in the treatment of wastewater also we use microbial cells, and these microbial cells require oxygen, right? And we can actually pass the gases within the medium, and there is mixing also. So in the wastewater treatment, if we use energy consuming mechanical stirrers, then it will be really costing a lot of money, as well as they are not so efficient in terms of microbial viability. These are cylindrical vessels with the height greater than the
ट्वाइस ऑफ द डायमीटर, जितना डायमीटर होता है उससे डबल इसका हाइट होता है। एंड देयर इज नो अदर इंटरनल स्ट्रक्चर अदर देन द गैस स्पार्जर। गैस स्पार्जिंग के अलावा इनमें और कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। There is a perforated horizontal plate, okay, and they are installed in the tall bubble columns, okay, to break up and redistribute the coalesce bubbles, ठीक है। तो बहुत सारे perforated horizontal plates को भी हम डाल देते हैं ताकि वो ब्रेक कर सके जो भी बबल्स आपस में जुड़ के कोलेस हो गए, बड़ा बबल बना दिया है। बड़ा बबल विल नॉट बी एफिशिएंटली मिक्सिंग द एंटायर मीडिया, वी नीड मैनी स्मॉल स्मॉल बबल्स थ्रू आउट द मीडिया ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम परफोरेटेड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी लगा सकते हैं। दे आर वेरी लो कैपिटल कॉस्ट कॉलम्स, दे लैक मूविंग पार्ट्स एंड सेटिस्फैक्ट्री हीट टू मास ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा इसमें हीट टू मास ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस होता है। और साथ ही साथ दे डू नॉट कॉस्ट टू मच, ऑल्सो दे आर more efficient in terms of mixing because they are not causing any damage to the catalyst or any damage to the microbial cells. In these uh, in these columns there is no problem of foaming. For example, in the stirred vessel there is foam formation. Foaming occurs that requires mechanical dispersion, okay, or addition of anti foam in the medium, ठीक है। एंटी फोम के डालने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। बट इन दिस केस देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशन ऑफ एनी केमिकल, ओके, ओनली वी नीड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है बबल कॉलम की, ये बबल कॉलम्स है। बबल कॉलम में एक्चुअली देयर इज अ स्पार्जर, स्पार्जर में से गैस का फ्लो होता है। यहाँ पर एयर सप्लाई है, एयर सप्लाई आ रही है इनसाइड द स्पार्जर, स्पार्जर से बबल्स बन रहे, दीज आर द बबल्स एंड दीज बबल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द मीडिया एवरीवेयर। कुछ कुछ केसेस में बीच बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी लगा देते हैं विच आर परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब ऐसी गोल सिलेंड्रिकल है, ये जो वेसल है वो सिलेंड्रिकल है, इसलिए इसका जो डायमीटर है जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होता है। तो सर्कुलर परफोरेटेड प्लेट्स लगाते थे। परफोरेटेड मतलब इसमें पोर्स है, इस तरीके से इसमें छेद बने हुए हैं जिसमें से कि जब एयर पास होएगी तो अगेन बहुत सारे बबल्स बन जाएंगे। अगर बड़ा बबल बन गया तो ब्रेक डाउन होके स्मॉल बबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद इन द मीडिया, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल परफोरेटेड प्लेट्स हम लगा सकते हैं इन बिटवीन द bubble reactor, bubble column, okay. So there is two types of flow in the bubble column, homogeneous and heterogeneous. And homogeneous flow में होता है all the bubbles are of same shape, okay, and they are uniformly distributed. While in case of heterogeneous, there are different sizes of bubbles, okay, and they are circulating, and there are big bubbles also which are also moving, and around them the smaller bubbles are also moving like this. Here in this case there are multiple flows within the reactor, okay. So like this flow is there, like this flow is there, so there are different sizes of the bubbles are found and which are moving in different ways.
So that is why it is called as heterogeneous. It is not uniform throughout the medium. नेक्स्ट टाइप होता है एयर लिफ्ट रिएक्टर. एयर लिफ्ट रिएक्टर क्या होता है? इन द बबल कॉलम, सेम एज द बबल कॉलम, the air lift reactor is also accomplished without mechanical agitation. Mechanical agitation is not there. In the air lift reactors, okay, why they are chosen? Because culture of plant and animal cells and immobilized catalyst, they require mild stirring. They do not require harsh stirring or very rigorous stirring. ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स द मैकेनिकल डैमेज. ओके, so their shear levels are significantly lower than the stirred vessels. Several types of airlift reactors are in use. Okay, तो देखो इसमें क्या होता है, पहले गैस स्पार्ज होती है ओनली इनटू द पार्ट ऑफ द वेसल क्रॉस सेक्शन कॉल्ड एज राइजर. देखो एक पार्ट होता है जहाँ पर एयर पास हो रही है, ये स्पार्जर है, इस वाले पार्ट में ही एयर स्पार्ज हो रही है और फिर यहाँ पर आ जा रही है. ओके, एयर लिफ्ट हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है फिर मिक्सिंग हो रहा है. इधर ये दोनों साइड पे एयर स्पार्ज हो रहा है और फिर स्पार्ज होके यहाँ पर आकर मिक्स हो जा रहा है. ठीक है, और इसमें इसके चारों तरफ घूम रहा है लाइक दैट. सो these are the examples of airlift reactors. ठीक है, they provide better mixing than bubble columns. better mixing होता है इसमें and they confirm a high degree of stability to liquid flow. ठीक है, हाई गैस फ्लो रेट्स कैन बी यूज्ड. हाई गैस फ्लो रेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं without incurring the operating problem such as snug flow और spray formation. जैसे spray formation हो जाता है, लाइक एक धार से आ रहा है एयर, ठीक है, and it will cause spread of droplets of media throughout the wall of the cylinder vessel, but this does not happen over here. Okay, and there is air lift. Actually entire media is lifting along with the air and it is getting mixed up like that. ठीक है, इस तरीके से ये यूज होते हैं. नो कंपैरिजन स्टर्ड का और एयर ड्रिवन रिएक्टर्स का कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे इनकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. देखो जो लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स होते हैं, लो विस्कोसिटी मीडिया होता है, उसमें एडिक्वेट मिक्सिंग और मास ट्रांसफ़र के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. हम स्टर टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, बबल भी यूज़ कर सकते हैं, एयर लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन लो विस्कोसिटी है तो हम जनरली बबल कॉलम या एयर लिफ्ट वेसल्स ही यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर लेस एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड वेरी गुड मिक्सिंग इन केस ऑफ लो विस्कोसिटी. लो विस्कोसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. ओके, थिन लिक्विड है. When a large fermenter is required for low viscosity culture, a bubble column is used. Okay, because it is very very simple. इसकी डिज़ाइन में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होता है. इट इज़ वेरी चीप ऑल्सो. इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट. कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है ईजीली. एक्सटेंसिव ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है. ओके, इन केस ऑफ mechanically agitated reactors, they are impractical
at volumes greater than 500 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैकेनिकल जो एजिटेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करते हैं, तो इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो लार्ज वॉल्यूम्स हैं उनके लिए हम बबल कॉलम्स या फिर एयरलिफ्ट वेसल्स ही यूज़ करें। मैकेनिकल स्टरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाती है। okay? और जो एनर्जी कंज्यूमिंग भी है और इट इज़ प्रोड्यूसिंग हीट ऑल्सो विद इन द मीडिया के अंदर हीट भी प्रोड्यूस करने लगता है। अगर कल्चर की हाई विस्कोसिटी है तो सफिशिएंट मिक्सिंग और मास ट्रांसफ़र के लिए एयर ड्रिवन रिएक्टर्स काम नहीं करते। हाई विस्कोसिटी के लिए हमें स्टर्ड टैंक ही चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हाई विस्कोसिटी के लिए हमें स्टर्ड टैंक चाहिए, मैकेनिकल स्टरिंग चाहिए। इट इज़ मोर सूटेबल बिकॉज इट ड्रॉज मोर पावर, ज़्यादा पावर चाहिए होता है और ज़्यादा पावर से ये मिक्सिंग करता है। ओके, मास ट्रांसफर रेट्स डिक्लाइन रैपिडली इन स्टर्ड वेसल्स एट विस्कोसिटीज ग्रेटर देन 50 to 100 cp। ठीक है, तो जो मास ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी लो हो जाती है एट वेरी वेरी हाई विस्कोसिटीज़। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टरर में भी प्रॉब्लम आ सकती है इन केस ऑफ हाई। तो हाई विस्कोसिटी जो लिक्विड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। मैकेनिकल एजिटेशन जनरेट्स मोर हीट as compared to air driven or sparged bioreactors। okay? अब जब हीट ऑफ रिएक्शन हाई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम मिथेनॉल और रिमूवल ऑफ फ्रिक्शनल स्टरर हीट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, देखो जो हीट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है मतलब ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो हीट जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ mechanical stirrers, that could be a problem। frictional stirrer is nothing but mechanical stirrer। तो जो हीट जनरेट होता है दैट विल इम्पैक्ट द रिएक्शन को इम्पैक्ट करेगा और रिएक्शन हैम्पर होएगा, उसका रेट जो है वो अफेक्ट होएगा, ईल्ड अफेक्ट होएगा, प्रोडक्ट का ईल्ड हमें कम मिलेगा, राइट। तो इस वजह से हम स्टर टैंक नहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हाई हीट ऑफ रिएक्शन है। ओके, स्टर टैंक एंड एयर ड्रिवन वेसल अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायोरिएक्टर कॉन्फ़िगरेशंस बीइंग यूज्ड इन द एरोबिक कल्चर। स्पेशली एरोबिक कल्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Now coming to the other types of reactors, एग्जाम्पल है पैक्ड बेड रिएक्टर। व्हाट इज़ अ पैक्ड बेड रिएक्टर? इसमें टाइटली पैक्ड मैट्रिक्स होती है, टाइटली पैक्ड रेजिन होता है जिसमें कि इमोबलाइज्ड पार्टिकुलेट बायोकैटलिस्ट होता है, बायोकैटलिस्ट से भरा हुआ है। इमोबलाइज किस पे करते हैं? ग्लास बीड्स पे कर सकते हैं या फिर पॉलीमर बीड्स पे कर सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोज बीड्स पे भी कर सकते हैं। सो द रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब होता है जिसमें कि जो पर्टिकुलेट बायोकैटलिस्ट है, इमोबलाइज सेल्स है या इमोबलाइज कैटलिस्ट है, वो फिल्ड अप है। ओके, सो मीडिया कैन बी फेड ऑन द टॉप ऑफ द और बॉटम ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो मीडिया को हम ऊपर से भी डाल सकते हैं, नीचे से भी डाल सकते हैं, और मीडिया जो है वो कंटिन्यूस फेस बना देता है। पैक्ड बेड की चारों तरफ हर जगह मीडिया प्रेजेंट हो जाता है। एक तो वो फील्ड है किससे? इमोबलाइज्ड कैटलिस्ट से या फिर सेल से, और साथ ही साथ जो मीडिया है वो चारों तरफ फैल चुका है। ओके, नाउ
This is a type of packed bed reactor in which there are immobilized cells which are performing their function. They are undergoing certain reaction, certain metabolite is produced, and then it is extracted, the product is extracted. ठीक है. पैक्ड बेड रिएक्टर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? जनरली जहाँ पर इमोबिलाइज सेल्स और एंजाइम्स यूज़ होते हैं, स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्पार्टेट एंड फ्यूमरेट. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ पेनिलिन टू 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड एंड रेजोल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड आइसोमर्स, तो उसमें भी ये काम आते हैं. इन एंजाइम्स की वजह से आइसोलेट कर पाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन की वजह से सेपरेट कर सकते हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैक्ड बेड. ओके, तो इस तरीके का होता है. ये है एग्जाम्पल पैक्ड बेड का. देखो ये वेसल है, काइंड ऑफ ट्यूब भी बोल सकते हो इसको. इसमें की फिल्ड है इमोबिलाइज्ड कैटलिस्ट या फिर सेल्स भी, और यूनिफॉर्म फेज बनी हुई है किसकी? मीडिया की. यहाँ पर मीडिया फिल्ड है, मीडियम. इसमें से जब पास होएगा, यहाँ से पंप से ही पंप हो रहा है मीडिया विद इन द पैक्ड बेड, और फिर रिसर्कुलेट हो रहा है और जा रहा है एक सेपरेट वेसल में. ये सेपरेट वेसल जो है वो स्टर्ड वेसल है. इसमें देखो, इसमें सिर्फ लिक्विड पार्ट है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये लिक्विड आ रहा है, और इसमें से हम एयर को स्पार्ज कर रहे हैं. एयर इज बीइंग स्पार्ज्ड. स्टरल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक बीड लगाया हुआ है, मैग्नेटिक स्टरल लगा रखा है. हम मैकेनिकल स्टरल भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो हमें जब एयरेशन करना है तो एयरेशन हम हमेशा सेपरेट टैंक में करते हैं इन केस ऑफ पैक्ड बेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एयरेशन is always in separate tank, जबकि औरों में इस तरीके का नहीं होता है. फ्लूइडाइज्ड बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड में देखो इस तरीके के जो इमोबिलाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से फ्री फ्लोइंग भी हैं और नीचे इकट्ठे हुए भी हैं. ठीक है. इट इज़ नॉट टाइटली पैक्ड, इट इज़ नॉट टाइटली पैक्ड. This is an example of fluidized bioreactor. ठीक है. तो इसमें हम गैस का स्पार्जिंग कर रहे हैं, गैस इन गैस आउट. तो स्पार्जिंग सेम वेसल में ही हो रही है जिसमें कि कैटलिस्ट हमारा भरा हुआ रखा है, एंड जो लिक्विड पार्ट है, that liquid part is being recycled back into the column. ठीक है. only liquid is being recycled. Another type is trickle bed reactor. ठीक है. trickle bed is another variation of packed bed. ठीक है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा fluidized bed, ये सब variations है packed bed के. okay. In this, water is sprayed onto the top of the packing. ठीक है. वाटर जो है वो स्प्रे से नीचे आ रहा है. ठीक है. स्प्रे से नीचे आएगा. यहाँ पे यूनिफॉर्म फेस नहीं बना रहा है वाटर, वो एक छोटी छोटी रिव्यूलेट्स से. रिव्यूलेट्स आप जानते हैं व्हाट इज रिव्यूलेट्स? जैसे रिवर होती है, रिवर जब पतले पतले सकरे सकरे अलग अलग छोटी छोटी नहरें टाइप बना देता है, उसको हर एक नहर जो छोटी सी नहर होती है उसको रिव्यूलेट बोलते हैं. तो इस तरीके से वो फ्लो कर रहा है विद इन द
trickle bed reactor. ठीक है, in between the immobilized particles. ठीक है, एयर कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें? इंट्रोड्यूस्ड एट द बेस, स्पार्जिंग कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड फेज इज नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट द कॉलम, एयर एंड गैस दे कैन मूव इजीली अराउंड द पैकिंग, कि सब जगह फैला हुआ नहीं है वाटर, तो एयर हम आसानी से इसमें से पास ऑन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एयर सब जगह चला जाएगा. okay. They are used widely for the aerobic waste water treatment. ठीक है, एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है. देखो ये है ट्रिकल बेड रिएक्टर का डिज़ाइन. यहाँ पर एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, जिसमें कि इमोबिलाइज्ड कैटलिस्ट है. ओके, यहाँ से जो वाटर है या फिर मीडिया है वो ट्रिकल हो रहा है. ठीक है, स्प्रे, देयर इज अ स्प्रे एंड मीडियम water is sprayed. Okay, it is sprayed. Okay, और जो नीचे से जो लिक्विड पोर्शन है, ओनली लिक्विड पोर्शन, ये जो इमोबिलाइज वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, ओनली लिक्विड पोर्शन इज बीइंग रिसाइकल्ड अगेन थ्रू द टॉप, थ्रू द स्प्रे डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, उसमें से ट्रिकल होता हुआ नीचे जाएगा और फिर रिसर्कुलेट होएगा, लाइक दैट. इस तरीके से ये फंक्शन करता है. ओके, तो ये अलग अलग तरीके के बायोरिएक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए. और मैकेनिकली स्टर्ड रिएक्टर होता है, बबल रिएक्टर होता है, एयर स्पार्जिंग वाला रिएक्टर होता है, ट्रिकल बेड है, फ्लूइडाइज्ड बेड है, पैक्ड बेड है. तो एनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड, बट हमें कौन सा कब यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोरिएक्टर डिज़ाइन. जो हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बायोरिएक्टर यूज़ करना है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका कितना डायमेंशन होना चाहिए और उसमें क्या क्या पोर्ट्स बने हुए होने चाहिए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच्ड होने चाहिए. राइट, फॉर एग्जांपल प्रोब, टेम्परेचर का प्रोब होना चाहिए या नहीं, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना है, या पीएच कंट्रोल होना चाहिए, पीएच का प्रोब भी होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी considered while designing a bioreactor for a particular bioprocess. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस लगता है, हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देते. हमें कोई प्रोसेस पता लग गई लेकिन हम उस प्रोसेस को डायरेक्टली लार्ज स्केल पे एकदम से हम स्टार्ट नहीं करते. हमें पहले डिज़ाइन करना होता है कौन सा रिएक्टर उसके लिए बेस्ट रहेगा. ओके, so those who want to join my classes, so I am currently taking 3 courses altogether, and one is molecular biology. तो मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ मैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अभी स्टार्ट ही हुआ है कोर्स. आप आ सकते हो, मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. ये जो क्लासेस हैं IIT जैम 2021 को टारगेट करने के लिए बनाई हुई है. ये मैंने जो एग्ज़ाम में केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो मैं इस कोर्स में कवर करा रही हूँ. और जो डिटेल्ड कोर्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो मैं इस कोर्स में करा रही हूँ. अनदर कोर्स इज रनिंग पैरेलल. ठीक है, दूसरा कोर्स भी चल रहा है जो कि है क्रैश कोर्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी फॉर गेट बी. जो गेट बी एग्ज़ाम है JNU CEV के रिप्लेसमेंट में है, उसके लिए क्रैश कोर्स मैंने चलाया है, जो कि ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करा रही हूँ. बहुत सारे ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे जो ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, वो मैं कवर करा रही हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स की बेस्ट से बेस्ट रैंक आए. ओके, सो इफ़ यू वांट टू अटेंड माय क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस, जॉइन अनअकैडमी प्लस, सब्सक्राइब करो.
ठीक है, प्लान सेलेक्ट करो, मेरा रेफरल कोड यूज़ करो। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है वसुधा9। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तब मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के दूँगी, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। एवरीथिंग विल बी मेड individually for each and every student. Okay, I have taken several other courses also already on the Unacademy Plus. इसकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, ऐप पे, और साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, and if you want to join my live classes, then start coming for my classes, because it's already going on every day. It is my classes are from जो 4:30 to 4:30 to sorry 4:30 to 5:30, and another class is 8 to 9 p.m. आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस नंबर पे। ठीक है, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ सब्सक्रिप्शन, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग योर एजुकेशन, आपको कोर्स कंप्लीट कैसे करना है, या फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, अब जो भी क्वेरी है आई विल बी देयर टू हेल्प यू। Okay, so don't waste your time. Join Unacademy Plus and come to my classes by using my referral code, which is Vasudha9. You will get 10% of discount straight away. Okay, so thank you everyone for attending this class, and take care.